Hello everyone, welcome to MBA Karo. From today we are starting a 30-day series on our channel which is by the name September Sprint. तो ये 30 दिन की सीरीज है, ये आपका कैट का रिवीजन कराएगी. You can call it a fast track revision series which is free on our channel. And in this we will cover all the three sections and all topics. We will try to touch all the topics and solve some quality questions. And by watching this series you will understand how to approach different kind of questions. तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिट कर सकती है अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मॉक टेस्ट दे रहे हो और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में अटक जाते हो, तो इसमें जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे दैट विल बिल्ड द थॉट प्रोसेस हाउ टू अप्रोच डिफरेंट क्वेश्चंस. तो आज पहली क्लास है, ये नंबर सिस्टम पे है. तो हर दिन एक एक क्लास आएगी. आप शेड्यूल देख सकते हैं. वी विल शो यू द शेड्यूल ऑल्सो सो दैट इफ यू आर फाइंडिंग दिस सीरीज यूजफुल तो आप वो टॉपिक पहले से थोड़ा पढ़ के और वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो. So welcome to our channel. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel and follow us on social media platforms. You can get PYP solutions on our Instagram and daily quiz on our Instagram, plus some free material for CAT preparation and other MBA examinations on our Telegram group, along with doubt resolutions. In case you are preparing for CAT and OMETs and are looking for a structured preparation, अगर आपको लग रहा है कि आपको issues आ रहे हैं preparation में और अगर आपकी कोई structured way में preparation हो जाए, so we have a course running which covers all these exams, basically VRC, Quant and LR. एंड स्पेशली क्वांट तो ठीक है, सब कैट की कवर करके सारे एग्जाम्स की कवर हो जाती है, बट वीए में जैसे ग्रामर और वोकैब है, और सिमिलरली एलआर जो होता है उसमें कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो कैट में नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इसमें आपके सारे वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, सो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो इट विल बेनिफिट यू. And in case you are looking for mock test, we have a mock test package which covers all MBA entrance examinations. And most of the places लोगों को कैट के मॉक मिल जाते हैं बट बाकी मॉक्स नहीं मिल पाते. तो इसमें कैट के मॉक्स आप सेपरेटली भी ले सकते हो. बाकी अगर आप ये बंडल लोगे सो दैट वुड बी बेटर थिंग. तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो, कैट, एनमैट, स्नैप, दैट एंड लेटर एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड, इसमें सारे मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे. तो दिस इज द शेड्यूल. आप में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे ये क्या शेड्यूल है 30 डेज का. सो दिस इज द शेड्यूल, यू कैन नोट इट. राइट, तो 30 डेज का पूरा शेड्यूल दिखा रखा है ताकि आप कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ओके, एंड like you can see that for 30 days we have we are covering all the three sections, and within that also like जैसे arithmetic की ज़्यादा classes हैं, algebra की ज़्यादा classes हैं compared to others, so in that proportion we are covering the topics. So watch all these 30 videos. आपने 30 videos देख लिए और आपको काफ़ी benefit होगा इस series से. And please do share it with your friends also who are preparing for CAT. All right, so let's start with the first question for the day. It says a number n is equal to 0. ABC, 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 where A, B, C are non-zero digits. By which of the following numbers should n be multiplied to get an integer product? Okay, so for all question I will also tell कि ये question easy, moderate या difficult category में आएगा, so that in case you are solving and want to figure out कि अगर आपने जल्दी कर लिया था क्या ये actually easy था या difficult था. So I would rate that this is an easy question. Okay, काफी कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन है. इवन इफ यू डू नॉट सॉल्व इट कम्प्लीटली, अगर आपको रूल पता है तो सीधे आप कर भी सकते हो. So we are given that n is equal to 0. ABC, ABC, ABC and so on. ठीक है, ये जो डेसिमल के बाद है ये आपका रिपीट हो रहा है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n is equal to 0. ABC and a bar over it. So that means कि ABC वाला जो पार्ट है वो रिपीट होते जा रहा है कंटिन्यूअसली. Now what we want to do is we want to remove this part to get an integer product. Okay, so if you see, if you multiply by 10, what will happen? इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो a से पहले था वो a के बाद शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बिकम a पॉइंट b c a b c a b c एंड सो ऑन. राइट, ऐसे चलेगा.
बट अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको B से A सब्ट्रैक्ट करना है, C से B सब्ट्रैक्ट करना है, A से C सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी 0, right? So what we will do in that case is we will try to multiply n by a power of 10, ठीक है? 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है such that ये जो डेसिमल के बाद ABC आ रहा है ये ABC ही आए फिर से, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करके B के बाद आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो डॉट ABC 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 हो जाएगा। So we will do 1000 multiply by 1000, 1000 n is equal to ABC dot ABC 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 और फिर ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है? अब आप देखो कि ये ABC डॉट ABC हो गया। अब जो ओरिजिनल नंबर था वो था n, n is 0 point ABC ABC ABC, सो ये सीक्वेंस सेम है ABC ABC ABC। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा, right? So you will get 999 n is equal to ABC. So ABC are non-zero digits. So these are digits. So if you multiply n by 999, you are getting an integer product. So the answer is 999. N is equal to ABC by 999. So that is our answer. So let's see the next question. Four consecutive prime numbers are arranged in ascending order. The product of the first three numbers is 20,677 and of the last three numbers is 33,263. Find the sum of the first and the last number. ठीक है? अब ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि डिफिकल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, ऑप्शंस दिए होते तो भी शायद आप ऑप्शन से ट्राई करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? बट ऑप्शन नहीं दिए तो ये काफी चैलेंजिंग बन जाता है। Now we will see a logical approach to solve these questions, right? तो आपको क्वांट सॉल्व करने के लिए थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मूले पता है, ठीक है? फॉर्मूले पता होना गुड, इट्स गुड थिंग, स्पेशली नंबर्स एंड ऑल। कई बच्चे नंबर्स नहीं करके जाते हैं, क्या होता है वो न्यूमेरिकली नहीं सोच पाते। अगर नंबर्स की कोई ट्रिक आपको किसी भी अदर टॉपिक में आ गया, जैसे अरिथमेटिक के टॉपिक में आ गई या फिर अलजेब्रा के टॉपिक में आ गई, अगर आपने नहीं किया तो आप उसमें फंस सकते हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? फोर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और फर्स्ट थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट ये है और लास्ट थ्री का ये है। अब पहले एक चीज देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, सो दैट वी गेट सम रफ एस्टिमेशन। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। जो प्राइम नंबर्स का गैप है वो कितना हो रहा है, या तो 2 हो रहा है, 2 4 2 4 2, तो टिपिकली 2 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है? अगर मान लो 23 के बाद भी लेंगे तो 29 आएगा, फिर 31 आएगा। तो टिपिकली 2 यहाँ पे 6 आ गया, 2 आ गया, बट बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, राइट? ऐसा नहीं होगा कि 20 का गैप आ गया, राइट? इट विल बी अ सिंगल डिजिट गैप ओनली। तो हम एक चीज कंसिडर करते हैं कि हम तीन प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है? थ्री कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो लेट अस से द सेंट्रल नंबर इज n, ठीक है? एक उससे दो छोटा ले लेते हैं, एक दो बड़ा ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको ले लेते हैं n-2 और इसे लेते हैं n+2। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट n इंटू n स्क्वायर माइनस 4 और n क्यूब माइनस 4n। अब आप सोचोगे 2 का गैप लिया, अगर हम 4 का गैप लें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप n-4 लेते हो, ठीक है, n लेते हो, n+4 लेते हो, तो आपका आ जाएगा n क्यूब माइनस 16n, राइट? तो इसको समझते हैं कि वाई आर वी डूइंग दिस एक्टिविटी। अंडरस्टैंड वन थिंग दैट अगर आप n की कोई वैल्यू लो, सपोज n इज इक्वल टू 10 ले लो, ऑफ कोर्स n यहाँ पे प्राइम नंबर है बट 10 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस इजी हैं, ठीक है? तो ये कितना हो गया आपका 1000 हो गया और ये कितना हो गया आपका -40। और अगर ये वाला केस भी ले लेते हो तो भी 160 आ रहा है, ठीक है? तो आप नोटिस करोगे कि लाइक 1000 के सामने ये नेग्लिजिबल है। ऑफ कोर्स 16n वाला और n 4 का डिफरेंस तो हर जगह है भी नहीं, कहीं पे 2 का भी है, राइट? तो ये इसके सामने काफी छोटा पड़ रहा है, राइट? 1000 के सामने 40 काफी कम है। चलो अगर आप सोचोगे ठीक है
यहाँ पे तो 1000, अब यहाँ पे देखो आपका वैल्यू कितनी है 20,000। तो अगर आप लेट अस से इफ यू टेक n इज इक्वल टू 30, ओके, क्योंकि 30 का कैलकुलेशन ईजी है, n क्यूब कितना आ जाएगा आपका 27,000, राइट। और अगर आप मान लो 16n भी लेते हो, 16n कितना हो गया आपका 480। अब देखो इसके सामने नेग्लिजिबल है। See, we are not calculating exact value, we are understanding the approach to approximate the answer। तो इसके सामने नेग्लिजिबल है, ठीक है। 27,000 के सामने 480 कुछ भी नहीं है। अगर आप 27,000 का कोई प्रोडक्ट लेते हो और उसमें 480 आपको ऑफ लगे, तो आपको ये तो कुछ भी ऑफ नहीं है, कम से कम 1000 का तो ऑफ होना चाहिए, 2000 का ऑफ होना चाहिए, राइट। तो सेम थिंग, नेग्लिजिबल वैल्यू, राइट। तो अब क्या चीज समझ में आती है कि और अगर आप 4n लोगे तो वो भी और भी छोटा है। तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इट दैट दिस प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज अप्रोक्सीमेटली n क्यूब। तो n क्यूब हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्यूब्स जानने की जरूरत नहीं, एक एस्टिमेट लेके चलते हैं। 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। 20 क्यूब भी ले लोगे तो भी आपका आएगा 8000, ठीक है। 30 क्यूब ले लोगे तो आ जाएगा आपका 27,000, ठीक है। ये वाला नंबर तो 27,000 से बड़ा है, तो वी विल ट्राई टू टेक अ प्राइम नंबर विच इज मोर देन 30, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स एक बार थोड़ा 30 के आसपास के देख लेते हैं। 21 तक के हमने 23, 29, 31 ये देख लिया था, इसके बाद 37 होता है और फिर 41 होता है एंड दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो दो सम्स है, एक लोअर वाला एक हायर वाला 30 क्यूब से ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो 30 क्यूब से ज्यादा जा रहा है, सो वी आर सेइंग दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली n क्यूब। 30 क्यूब इज 27,000, 30 के बाद कौन सा प्राइम नंबर बन रहा है 31। तो नाउ सी वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू, आप कैलकुलेटर से आप प्रोडक्ट वेरीफाई कर सकते हो, मैं वो भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो सेकंड वाला नंबर है जैसे 33263 और लोअर नंबर इज 2677, राइट, इसको मैं मान लेता हूँ सेंट्रल प्राइम नंबर 31, ठीक है। बिकॉज हमने अभी क्या डिस्कस किया, पूरा ये डिराइव किया कि अप्रोक्सीमेटली n क्यूब है, लॉजिक समझ में आ गया आपको। अब लॉजिक अप्लाई करते हैं कि ये 31 रख रहे हैं, 31 से बड़ा कौन सा है 37 है, 31 से छोटा है 29। तो दीज आर द थ्री प्राइम नंबर्स। नाउ अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स डिजिट। तो नंबर्स के आपको लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए, अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो ये सपोजिटली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी बन जाता है। 9 इंटू 7 63, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है विच इज मैचिंग विद दिस, ठीक है। तो ये एक चीज सही है कि हमने लास्ट डिजिट तो सही लिया है। नाउ इफ यू कंसिडर दिस वन, ये कह रहा है कि 4 नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, तो ये यहाँ पे थर्ड नंबर बन जाएगा, सेकंड नंबर बन जाएगा, 29 से पहले आता है 23। तो दीज आर द फोर नंबर्स दैट वी आर फिगरिंग आउट। तो लेट अस सी कि ये भी प्रोडक्ट सही बन रहा है, 23, 29, 397 और द लास्ट डिजिट इज 7। अब क्या होता है इस स्टेज पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे मार्क कर देते हैं क्योंकि आंसर सही होगा। जो अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं वो तो या तो कैलकुलेटर चला के देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर चला के देखोगे आंसर मिल जाएगा, टाइम लगा कैलकुलेटर यूज करने में। पहले तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इफ यू आर बिलो एवरेज इन क्वांट सो यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। इफ यू आर रियली गुड इन क्वांट, ठीक है, आप बहुत अच्छे जैसे 14-15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो क्वांट में इजीली, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली। और इस तरह से अगर आप लॉजिक समझ गए तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो आप ये पूरी चीज ये प्रोसेस नहीं लिखोगे। दिस वाज टू एक्सप्लेन एंड बिल्ड द लॉजिक। तो आपको सीधे ये सोचना है कि तीन प्राइम नंबर कैसे फिट होंगे। अब इसमें कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाता है कि ये क्या हमने लास्ट डिजिट से चेक किया, लास्ट डिजिट 7 बहुत सारे नंबर्स में आ सकता है, बट द थिंग इज जो हमने लॉजिक किया कि वो n क्यूब के पास आएगा वो फिट बैठ रहा है, और दूसरा लॉजिक किया है कि लास्ट डिजिट सेम होगा और प्राइम नंबर्स इतने ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर हर कोई प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर्स लिमिटेड है, सो दिस विल फिट द आंसर। सो अगर हम बात करें फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर इज 23, लास्ट नंबर इज 37, सो देयर सम इज 60, so आंसर आ गया 60। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था एंड आई होप अगर आपने पहले इस तरह का क्वेश्चन ना किया हो, आपको बहुत अच्छा लॉजिक पता चला कि हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज देयर आर 60 चिल्ड्रन दैट आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ठीक है, 60 बच्चे हैं एक सर्कल में खड़े हैं। चाइल्ड वन हैज अ रिंग, द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज इन द फॉलोइंग मैनर, तो क्लॉकवाइज पास करता है। चाइल्ड वन passes on to child 2, child 2 passes to child 4, 4 passes to 7, 7 to 11 and so on, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्या सीक्वेंस बन रहा है।
1 देता है 2 को, 2 देता है 4 को, 4 देता है 7 को, 7 देता है 11 को। तो आप पैटर्न देख सकते हो, +1 +2 +3 +4। डेफिनेटली आप बता लोगे कि नेक्स्ट होगा 16, फिर नेक्स्ट होगा 22, बट आपको ऐसे पूरी सीक्वेंस नहीं बनानी है। लॉजिक फिगर आउट हो गया क्या सीरीज का पैटर्न है। ओके, अब ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सच ट्रांसफर्स विल द रिंग बी इन हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। ठीक है, अब देखो दो तरीके, एक तो ऑप्शन से पुट करके देख लो, राइट, एक वैसे भी समझते हैं बिना ऑप्शन। मतलब ऑप्शन आपको तभी यूज करना पड़ेगा जब आपको एक सीक्वेंस का पैटर्न पता चले, राइट। अगर आप मैनुअली काउंट करोगे तो काफी टाइम लगेगा, बिकॉज 14-15 वैल्यूज काउंट करनी है। ठीक है, वो भी करते हैं लोग, जिसको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं आता वो भी करते हैं, उसका आंसर तो भी आ जाएगा। ठीक है, बट लेट अस डू इट इन अ स्मार्टर वे। ठीक है, तो स्मार्ट वे में कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1 है इसके पास, अब जब ये साइकिल खत्म होगी, लेट अस से ये 59 के पास चला गया, ठीक है, 59 60 को सपोज एक एक से बढ़ रहा है, 60 को देगा, फिर 60 के बाद 1 के बाद आना चाहिए, 60 के बाद 1 आएगा, तो 1 कैन बिकम 61, राइट। अगर मान लो पहले राउंड में नहीं आता, 120 में ये 60 वाला होता, फिर 121 1 बन जाता। तो इट विल रिपीट आफ्टर एवरी 60 नंबर, तो हर 60 के बाद 1 आ जाएगा, राइट। सो वी विल कीप एडिंग, सो वी कैन say that this person is by the number 60k plus 1 or any such constant 60k plus 1, ये आपको रिपीटेटिव ऑर्डर में आएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सीरीज पे जाते हैं। सीरीज क्या बन रही है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। So sum of first 10 natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. What is sum of first 10 natural numbers? n plus 1 by 2। ये होता है sum of first 10 natural numbers। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी टेस्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो रहा है कि 1 ट्रांसफर के बाद 2 पे आ रहा है, 2 के बाद 4 पे आ रहा है, एक बढ़ा दो, why 1? क्योंकि इनिशियली 1 पे था, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम 1 2 3 4 ऐड कर रहे हैं तो पहले 1 ऑलरेडी था। ठीक है, तो उसमें n 1 ऐड करना पड़ेगा। ये लॉजिक समझना पड़ेगा, 1 ऐड क्यों किया, बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, 1 पहले से था, वी आर एडिंग 1 टू इट, तो 1 पे 1 ऐड किया, 2 पे 2 ऐड किया, और नेचुरली जब हम ऐड करते तो 1 3 6 ऐसे आपके ट्रायंगुलर नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सम हमारा आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 60k plus 1। ठीक है, तो ये हमारा बनना चाहिए। अब इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हो, यू विल से n into n plus 1 should be equal to 120k, राइट। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो, एक तो ऑप्शन वाला तरीका है कि आप यहाँ पे 14 15 ऐसे करके वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो आप देख लोगे कहाँ पे k इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो किस में आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि k की वैल्यू 1 2 3 4 करके ट्राई कर सकते हो। तो n into n plus 1 120 किसी नंबर से बनता है। आप या तो k की वैल्यू रख सकते हो या ऑप्शंस की वैल्यू रख सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। मैं k की वैल्यू रख के कर रहा हूँ, आप ऑप्शन रख के करके भी ट्राई कर सकते हो आंसर। तो 120 किसी दो का प्रोडक्ट होता है, 10 into 11 110 होता है, 11 into 12 132 हो जाता है। ठीक है, सो दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो ये बनता है 240, राइट। सो वी हैव 15 into 16 is 240, so that means n is 15, so after 15 transfers comes back to player number 1। so अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये लॉजिक आता होगा। इसीलिए आपको हर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन है, आई वुड रेट इट एज मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट कई लोगों को नहीं आता है, कुछ लोग यहाँ पे 1 वाली मिस्टेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन काफी इजी था, अगर आपको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, आप इसे इजीली कर सकते थे। I hope you are liking the session, so please do like this video। और इस सेशन में काफी अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस होंगे, काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन होंगे। होपफुली आपने इस तरह के कई क्वेश्चंस किए भी होंगे, कुछ नहीं भी किए होंगे, तो आपको नई लर्निंग डेफिनेटली मिलेगी और अप्रोच सीखने को मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस को सोचा जाता है। और अगर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और नहीं भी है तो आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, राइट। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। a फैक्टोरियल एंड्स इन 28 zeros while b फैक्टोरियल एंड्स इन 31 zeros where a and b are natural numbers, what is the maximum possible difference between a and b। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल में कितने जीरोज होते हैं? आप क्या करते हो, उसको रिपीटेटिव डिवीजन बाय 5 करते हो, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सही इस टॉपिक को। तो आप रिपीटेटिव डिवीजन बाय 5 करते हो। सो लेट अस से मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको रिवर्स समझाऊंगा कि कैसे सोचते हैं। सपोज आपको 500 फैक्टोरियल में जीरोस निकालने हैं कि इसके एंड में कितने जीरोस होते हैं। तो व्हाट यू डू, 500 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको 100 आता है, ठीक है। फिर जो बचता रहता है उसे 5 से डिवाइड कर देता है, दैट इज 20, एंड 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। अब 4 इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, तो वी हैव 124 जीरोस, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होता है कि जीरोस कैसे निकालने हैं। अगर नंबर ऑफ जीरोस दी है तो n फैक्टोरियल पता लगा सकते हो? नहीं ना, इसीलिए ये बताया था। अब आप नोटिस करो, ठीक है, 124 500 कितना टाइम्स है? रफली 4 टाइम्स। सी एग्जैक्ट कभी नहीं होगा, 4x होगा, 4x से थोड़ा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर रिवर्स पूछा है, क्योंकि देखो इट विल नॉट बी ओनली 500 फैक्टोरियल, 501 फैक्टोरियल में भी 4 ही जीरोस होंगे, ठीक है। सो इट इज अ रेंज ऑफ नंबर्स, वी नीड टू फाइंड दैट रेंज। तो पहला आप हिट एंड ट्रायल से क्या करोगे, पहला यू विल फाइंड द फर्स्ट सच नंबर, ठीक है। तो 28 जीरोस का क्या हो जाएगा, 28 इंटू 4, और इंटू 4 से थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट, प्लस समथिंग, सो यू कैन से दैट प्लस सम स्मॉल नंबर n, राइट। तो ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरोस दिए हैं तो आप नंबर कैसे फिगर आउट करोगे, ठीक है। इंटू 4 करके उसमें कुछ थोड़ा सा माइनर एडिशन होगा। तो अगर हम ये देखें, 28 इंटू 4 इज 112, राइट। 115 पे टेस्ट करते हैं तो आपको फिर रिवर्स टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट कि मतलब इंटू 4 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको उसके आसपास टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि लाइक नंबर क्या हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 4 करके हमारा आ गया 112, तो 115 को टेस्ट करेंगे। 115 बाय 5 इज 23, 23 बाय 5 इज 4। अब यहाँ पे 27 ही जीरोस बन रहा है कि हमें चाहिए 28 जीरो। तो 28 जीरो कब आएगा, 5 के मल्टीपल्स में नया जीरो ऐड होता है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हर 5 के मल्टीपल पे नया जीरो ऐड होता है। तो 120 फैक्टोरियल पे 28 जीरोस आएंगे, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 115 पे 27 था, क्योंकि 116 117 18 19 पे 5 की पावर नहीं है। यहाँ पे 5 की पावर आएगी, वहां नया जीरो ऐड होगा, ठीक है। तो 120 फैक्टोरियल अगर हम लेते हैं, 120 फैक्टोरियल इफ यू कंसिडर, सो 120 बाय 5 इज 24, एंड 24 बाय 5 इज 4, ठीक है। तो 28 जीरोस के लिए आपको चाहिए 120 फैक्टोरियल। और 120 फैक्टोरियल से कहां तक 28 जीरोस रहते हैं, इट विल गो ऑन टिल 124 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास कोई भी नया पावर ऑफ 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 125 क्या होता है। 125 इज 5 क्यूब, तो यहाँ पे आपकी 3 पावर्स ऐड हो गई, ठीक है। तो 125 फैक्टोरियल में आपके पास 31 जीरोस हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जितनी 5 की पावर होती है उतने जीरोस होते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल में जितनी 5 की पावर होती है, बिकॉज फैक्टोरियल इज लाइक व्हाट इज जीरो, जीरो इज अ प्रोडक्ट ऑफ 10, 10 इज 5 इंटू 2, 2 की तो बहुत ज्यादा पावर होती है, तो हमें देखना होता है लोअर पावर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ो, कि अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है या पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये तब समझ में आएगा कि क्यों हम 5 की पावर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज रीड दिस कॉन्सेप्ट इफ यू हैव नॉट, बिकॉज इससे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 125 में 31 जीरोस आ गए, ठीक है। तो बी बी आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 125 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 125 में पहली बार 31 जीरोस होंगे। तो 31 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, सॉरी 125 से स्टार्ट होगा और जाएगा 129 तक का, ठीक है। बी की वैल्यू 125 से 129 तक जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपके 31 जीरोस होंगे, 130 पे 32 जीरोस हो जाएंगे। देख लो, अगर आप 130 चेक करोगे, 130 बाय 5 is 26, 26 by 5 is 5, 5 by 5 is 1, तो ये आपका 26 प्लस 5 प्लस 1 32 जीरोस आ गए, ठीक है। तो 130 हम नहीं कंसिडर कर सकते, 129 मैक्सिमम जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है 120 है, बी की मैक्सिमम 129 है, तो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है 9 का। Okay, so that is the answer to this question, right? I would rate that this is a moderate to difficult question depending on, अगर आपको concept नहीं आता है, concept आता है तो आप concept आता भी है तो आपको reverse सोचना नहीं आता, into 4 करते हैं। तो आपने क्या सीखा, तो ये concept सीखा कि into 4 करके approximate कर सकते हैं, और of course ये basic concept लोगों को आता होगा। ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे 125 आ जाएगा तो 3 zeros ऐड होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। This is an easy question. I would rate कि काफी easy question है। If A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct, ठीक है, सारे distinct digits distinct है, that is अलग अलग digits हैं, and are non-zero digits, ठीक है, non-zero digits हैं, कोई भी zero नहीं है इनमें से, and ABC plus DEF is 1111, ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर है। What is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? तो इन 6 डिजिट्स का सम पूछा है, ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो जब भी एडिशन करते हो तो ऐसे लिखते हो ABC प्लस DEF, राइट, तो ये सम दिया है हमें 1111। इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड क्वेश्चन है, अगर जिसको आता है वो फटाफट कर सकता है। अब क्या कह रहा है, C प्लस F 1 कह रहा है, सो 1 कैसे आएगा, 0 प्लस 1 इज 1, राइट, सबसे पहले यही सोच आती है। अब क्या दिया, दीज आर नॉन जीरो, तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता तो मतलब वो 11 होगा, ठीक है, तो कैरी जाएगा, तो C प्लस एफ विल बी इक्वल टू, C प्लस एफ इज 11, 11 होगा तो यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। B प्लस ई 1 होना चाहिए, B प्लस ई 1 पॉसिबल, B प्लस ई प्लस 1 इज 1, राइट, तो B प्लस ई 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, B प्लस ई आपका, यहाँ पे जो हम लेंगे B प्लस ई दैट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, B प्लस ई 10 होगा तो जाके ये 11 बनेगा, ठीक है, फिर एक कैरी चला जाएगा तो A प्लस डी आपका 10 होगा, तब जाके ये टोटल 11 बनेगा, राइट। अब इसमें आपको डिजिट्स नहीं पूछे, क्या है, आपको सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। सम ऑफ डिजिट्स आपका आ रहा है 31, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ए बी सी डी एफ की वैल्यू, तो 2 9 ले लेते हैं, ये आपका बन गया 11, कोई भी दो नंबर ऐड टू 10, 4 6 दैट इज दिस, और 7 3, तो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कैसे आपका आंसर 1 1 1 1 आ सकता है, ठीक है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं आने के, हमें वो वेज नहीं निकालने, नंबर ऑफ वेज नहीं पूछे, नंबर ऑफ वेज पूछ लेते तो वो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो ट्राई दैट आउट, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो तो आंसर दैट हाउ मेनी वेज, how many, this is not the sum, ठीक है, how many ways can we get this sum, ठीक, कितने तरीके से ये सम हमारा आ सकता है, ठीक है, तो ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया, नया लेवल का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो बस वही कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड हो जाता है, ये कैट में ये होगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया, नंबर सिस्टम प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐड हो जाता है, तो नंबर सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्किप मत करना, कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, एंड स्पेशली अगर आप कुछ और एग्जाम दे रहे हो, जैसे जैट हो गया, एनमैट हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं, और कैट में भी इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज यूज कर ली जाती हैं, या फिर कई बार जैसे कुछ बच्चे सीरीज एंड प्रोग्रेशंस छोड़ देते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ देते हैं, लास्ट टू लास्ट या टाइम एंड वर्क में हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल दिया था क्वेश्चन में, राइट, तो कैट में जो क्वेश्चन है ना वो स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं होते हैं, कई बार मिक्स मैच होते हैं। Okay, so now let's do this. The year is 2025, so why not solve a question based on 2025? तो ये कह रहा है find the last digit of 1 raised to the power 1 plus 2 raised to the power 2 plus 3 raised to the power 3 plus 4 raised to the power 4. So ये difficult question है, आपको यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट करते हैं, राइट, वी आर सेइंग कि 1 raised to the power 1, तो इसके लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको लास्ट डिजिट निकालना आता है, पहले हम इसकी पूरी सीक्वेंसिंग देखेंगे, ठीक है,
सबसे पहले इजी पिकिंग्स करनी चाहिए इसमें, 8 टू द पावर 8, 9 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो ये हमारे पहला सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसमें क्या सम आता है। तो एक चीज याद रखना, 1560 जो होते हैं, 1560 में हमेशा 1560 आता है। ठीक है, ये सेम रहता है, तो इनको एज इट इज लिख लो। तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट तो बन गए। अब क्या होता है 4 और 9 वाला, 4 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑड में सेम रहते हैं, दैट इज 4 एंड 9, और इवन में ये बन जाते हैं 6 और 1। ये याद रखना। तो 4 इवन पावर पे जा रहा है तो ये बन जाएगा आपका 6, और 9 ऑड पावर पे जा रहा है तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब क्या होगा कि जो 2, 3, 7 और 8 है, ठीक है, ये चेंज कर देते हैं, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4 टर्म्स की। ठीक है, बाकी की मतलब 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी कुछ नहीं होती है। 2 ऑफ देम हैव साइक्लिसिटी ऑफ बेसिकली 4 एंड 9 हैव साइक्लिसिटी ऑफ 2, राइट। तो बाकी इनकी साइक्लिसिटी 4 टर्म्स की होती है। सो लेट अस यूज दैट साइक्लिसिटी नाउ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 स्क्वायर इज 4, सो लास्ट डिजिट 4 होगा। 3 टू द पावर 3 इज 27, 7 टू द पावर 7 मतलब हमें 7 की थर्ड पावर देखनी है, 7, 9, 3। अब ये साइक्लिसिटी आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ फटाफट। 2, 4, 8, 6। ठीक है, 3 की होती है 3, 9, 7, 1। 7 की होती है 7, 9, 3, 1। एंड 8 की होती है 8, 8, 8, 64। then 4 into 8 3 2, last digit is 2, 2 into 8 is 6। तो ये इनकी साइक्लिसिटी होती है। ठीक है, अब 8 की पावर 8 मतलब फोर्थ पावर देखनी है हमें, तो दैट विल बी 6। तो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया आपका 5, 12, 18, 23, 29, 29 प्लस 9 इज 38, 39। एक बार चेक कर लेते हैं। 4, ये आपका 7 ही बनेगा, 12 एंड देन 6 बनेगा 18, प्लस 5 23, 29 एंड 7 का 3 32, 38, 39, राइट। तो ये 39 आपका बन रहा है। 9 टू दी पावर, सॉरी 9 की पावर 9 हमने यहाँ पे गलत ले लिया, ये 9 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने गलत कर लिया था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 की पावर ऑड है, ठीक है, तो 4 की हमने इवन ली, बट 9 की हम ऑड लेंगे क्योंकि 9 की पावर ऑड है। तो ऐड करते हैं 5, 12, 12 प्लस 6 18, 23, 29, 32, 38, 47। तो हमारा क्या कितना टोटल बना 47। लास्ट डिजिट कितना बना 7। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये आगे भी सेम बनेगा, राइट। देखो 1 की पावर 1 ही है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये हम 11 टू 20 बात कर रहे हैं, लास्ट डिजिट विल डिपेंड ऑन लास्ट डिजिट ओनली। हम 11 टू 20 देख रहे हैं। 2 की पावर 12 आ जाएगी, 2 की पावर 12 मीन्स फोर्थ पावर आ गई, तो 2 की पावर फोर्थ यहाँ पे 4 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 की पावर 13 हो जाएगी, और 13th पावर मतलब फर्स्ट पावर, सो दैट इज 3। यहाँ पे 3 बन गया, चेंज हो गया। 4 में इवन, पहले सबसे पहले 1560 सॉर्ट कर लो, तो आपको क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं लगता जितना एक्चुअली होता है, क्योंकि आप कुछ डिजिट्स फिल कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमने ये 4 फिल कर लिए सबसे पहले, फिर हमने 4 और 9 फिल करो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें सारे डिजिट्स यूज करने हो तो सबसे पहले 1560 करो, फिर उसके बाद बाकी फिल करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे, वी विल फिल दीज वैल्यूज 4 एंड 9। तो 4 की पावर इवन आ जाएगी, दैट इज 6, एंड 9 की ऑड पावर वो 9, सो वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो 4 और 6 की पावर, 4 और 9 तो हो गई, अब 2, 3, 7, 8 द प्रॉब्लम विंस, बिकॉज जिसमें 4 पावर्स देखनी होती हैं। तो 2 की हमने भी पावर देखी थी, 2 की पावर 12 है तो लास्ट डिजिट 4 होगा। 3 की पावर 13, सॉरी 2 की पावर 12 है तो फोर्थ पावर दैट इज 6 विल कम हियर, और यहाँ पे 3 की पावर 13 थी, दैट इज फर्स्ट पावर विच इज 3। और सिमिलरली 7 की पावर यहाँ पे 17 है, 7 की पावर 17 मतलब फर्स्ट पावर,
सो 7 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद 8 की पावर 18 हो रही है, तो दिस इज टिपिकली 18 की पावर 18, राइट। सो लास्ट डिजिट हम सिर्फ कंसिडर करते हैं, दैट इज सेकेंड पावर, राइट। सेकेंड पावर क्या होती है, 18, सेकेंड पावर इज 4, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब नोटिस करो, पूरा ऐड भी कर सकते हो चाहो तो। एक चीज नोटिस करो कि क्या चेंजेस आए, ठीक है। 6 और 3 चेंज हो गए, और यहाँ पे 7 और 4 चेंज हो गए। बट एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, टोटल वही रहेगा। कैसे, यहाँ पे 6374 था, ये 3674, टोटल वही रहेगा, ठीक है। बाकी सेम रहे, ये सारे सेम हैं, ये सारे सेम हैं, ये सारे सेम हैं, ये सारे सेम हैं, तो इनमें चेंजेस नहीं आया, सिर्फ इन 4 वैल्यूज में आया, बट अल्टीमेटली सम सेम रहा, ठीक है। तो ये भी आपका 47 ही सम आ जाएगा यहाँ पे भी। आप चाहे तो अगर इतना नहीं भी ऑब्जर्व किया है, आप टोटल करके करोगे तो 47 आएगा, ठीक है। अब 21 to 30 देखते हैं, एक बार को देखते हैं कि 21 to 30 क्या होगा। तो 2 की पावर यहाँ पे देखो, ये तो सेम रहेंगे, 1 6 5 1 4 सॉरी 1 4 5 6 9 और 10, ये सेम रहेंगे, क्योंकि 9 की पावर ऑड आएगी, 4 की पावर इवन आएगी, 1 5 6 0 सेम रहते हैं। नाउ वी विल सी 21 2 की पावर 22, ठीक है। 22 मतलब सेकेंड पावर होगी, तो इट इज इक्विवेलेंट, इट इज 22 2 की पावर 22, ये डिजिट मैटर नहीं करता। 22 टू द पावर 2, दैट विल बी 2 रेज टू द पावर 2, मतलब ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी, ठीक है। 23 की पावर 23 करेंगे, ये मैटर, डिजिट मैटर नहीं करता। 4 से डिवाइड करोगे तो थर्ड पावर पूछेगा, तो दैट इज 7, तो ये 7 आ गया। फिर अगर हम देखें कि इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। 27 की पावर 27, ठीक है। थर्ड पावर चेक करनी है, 7 की पावर 3, विच इज अगेन 3 एज द लास्ट डिजिट, and it is 28 to the power 28, last digit matter, only last digit matters, 8 की फोर्थ पावर which is, तो ये आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो व्हाट वी आर सीइंग कि सेम टोटल बन रहा है, ठीक है, सेम टोटल फिर से आ रहा है। तो क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम हर जो 10 ले रहे हैं उसमें लास्ट डिजिट 47 आ रहा है। तो वन साइकिल का लास्ट डिजिट है 7, ठीक है। अब हमें कितनी साइकिल्स बनानी है, हमें जाना है 2020 तक, तो वी नीड 202 साइकिल्स। तो हर बार लास्ट डिजिट 777 आ रहा है, सो 2000 साइकिल्स में कितना लास्ट डिजिट आएगा। सी, द क्वेश्चन इज अबाउट लास्ट डिजिट, ठीक है। तो आपको बाकी डिजिट से मैटर ही नहीं करता क्या डिजिट्स हैं, इंटू 7, लास्ट डिजिट 7 है अपना, तो अपना लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है आफ्टर 2002 साइकिल्स। मतलब 2002 साइकिल्स का मतलब है 2020 की पावर 2020 लेने पे लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक लास्ट डिजिट 4 आया। अब हम 5 मैनुअली काउंट करेंगे। 5 कैसे काउंट करेंगे, वी विल काउंट 21 22, सॉरी ये वाली सीरीज चलेगी, क्योंकि देखो 1 to 20 अलग चल रहा है, 11 1 to 10 अलग चल रहा है, 11 to 20 अलग चल रहा है। तो फर्स्ट हाफ में ये आ रहेगा 2021 वाला, यहाँ पे फर्स्ट पावर आएगी, सेकेंड पावर आएगी, तो ये 5 डिजिट आप ऐड कर लो, बस आपका आंसर बन जाएगा। 1 + 4 is 5, 10, 10 + 13 is 23, मैं कुछ 23 ऐड करना है, ठीक है। 23 मीन्स लास्ट डिजिट 3 ऐड करना है essentially, so our answer will be, last digit of this will be 7। डेफिनेटली वर्थ स्किपिंग क्वेश्चन है, बट अगर मतलब ये एक साइकिल, सपोज आप गलती से 2 साइकिल नहीं भी चेक करते, एक साइकिल पे आप निकाल लेते 7 है, वो भी आप कर लेते क्योंकि टोटल सेम ही आ रहा था, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, डेफिनेटली वर्थ स्किपिंग। बट अगर जैट जैसे एग्जाम में आता है वहां आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काफी टाइम रहता है। ओके, सो आई होप यू लव दिस क्वेश्चन। तो हम इसमें मॉडरेट डिफिकल्ट, कुछ कुछ इजी भी हैं, ठीक है। तो मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे, काफी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, काफी ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको ये काफी पसंद आएगा। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 555 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट डिजिट होता तो आसान था, लास्ट डिजिट नहीं है, लास्ट 2 डिजिट्स पूछा है, तो मैं कहूंगा स्टिल मॉडरेट है, क्योंकि आपको फैक्टोरियल्स लिखने होंगे, ठीक है। अच्छा, पहले करते हैं 1 फैक्टोरियल। आपको पता है कि 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 6 है, 24 है, 120 है, ठीक है।
720 है, कहाँ तक आपको आते हैं? आई वुड आइडली से कि आपको आने चाहिए लाइक 7-8 तक आने चाहिए, तो 6 है, 7 तक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, 8 तक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये 6 फैक्टोरियल तक हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है देखो, इसके बाद सब में 0-0 आना है, ठीक है? आई वुड से कि ये ईज़ी ही है, क्योंकि लोगों को अप्रोच नहीं पता होती है। लोग सोचते हैं भाई लास्ट 2 डिजिट पूछ लिया, ईज़ी है, ईज़ी टू मॉडरेट कह दूँगा। चलो फैक्टोरियल की वैल्यूज़ आपको कुछ ही लिमिटेड नंबर तक आती होगी। तो ये हमारा 5040 हो गया, ठीक है? यू हैव टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। तो लास्ट 2 डिजिट्स डिपेंड ऑन द लास्ट 2 डिजिट्स, नथिंग एल्स, ठीक है? तो ये आपके इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं भी पता है 720 होता है, आप 20 लेके इंटू 7 कर लो। तो 7 फैक्टोरियल था, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल तक निकालते हैं, ठीक है? तो 8 के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है? 40,320 होता है। देखो 40 लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करो बस, और मल्टीप्लाई करो। 40 इंटू 8 इज 320, ये डिजिट हटा दो, इंटू 9 करो 20 इंटू 9 इज 180, ये डिजिट हटा दो, 80 इंटू 10 इज 0 0, ठीक है? अब आप इसके बाद देखोगे सिर्फ 0 0 आते रहेगा। अगर आप समथिंग 100 है तो 0 0 ही बनेगा। तो 10 फैक्टोरियल के बाद आपका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो एक्चुअली 555 नहीं था, ये था 1 to 9 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल के बाद तो 2 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद जितने भी नंबर है, चाहे 555 लिखो, 2025 लिखो, है 777 लिखो, 1000 लिखो, 5000 लिखो, डज नॉट मैटर। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि इतनी लंबी सीक्वेंस है ही नहीं, एक्चुअली इतनी लंबी हो ही नहीं सकती। वो कुछ एक छोटा आपको पैटर्न निकालना पड़ता है, उसे आगे देखना पड़ता है। जैसे 2025 वाला था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि आपको नंबर ऑफ साइकिल से भी मल्टीप्लाई करना था, बट एक्चुअली साइकिल थी 1 से 10 तक की, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बस 9 तक ऐड करना है, तो फटाफट ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ऐड करने का फास्ट तरीका बताता हूँ। 80 को साथ 20 ऐड करो तो 100 बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे पहले जीरो से एंडिंग वाले लग देते हैं। 100 हो गया, 40, 60, 80, 180, 204, 210, 213, सो 213 हमारा आंसर हो जाता है। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या बनते हैं? 1 एंड 3, ठीक है? तो इजी मॉडरेट क्वेश्चन था। कई लोग नंबर देख के घबरा जाते हैं, कई लोग लास्ट 2 डिजिट्स सोच के घबरा जाते हैं, पर अगर आप इसको सही वे में करोगे तो काफी इजीली हो सकता है। विद इन अ मिनट वाला क्वेश्चन है, राइट? So I hope you are loving this session. So please do like this video. Find the number of trailing zeros at the end of 50 factorial by 10 factorial. ठीक है? तो अब क्या करते हैं कुछ लोग यहाँ पे 50 factorial के zeros निकाल के 10 factorial के जीरो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जो एक मिस्टेक। तो पहले हम फैक्टोरियल के जीरोस निकाल देते हैं। आई वुड रेट दिस एज इजी मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है? इजी क्वेश्चन बिकॉज बहुत इजी निकालना है, मॉडरेट बिकॉज कुछ लोग कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक करेंगे इसमें, ठीक है? मिस्टेक क्या करेंगे? पहले फैक्टोरियल के जीरो निकालते हैं। 50/5 इज 10, 10/5 इज 2, और खत्म। तो 10 + 2 12 जीरोस, और अगर 10 फैक्टोरियल के जीरोस निकालें 10/5 इज 2, ठीक है? तो यहाँ पे 2 जीरोस होते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे डिवाइड करके आंसर 6 कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं 12/2 इज 6, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो एक नंबर लेते हैं, लेट अस से 4000 और 40,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है? डिड यू डिवाइड दिस? आप 4/3 कर रहे हो? नहीं कर रहा ना। आप क्या कर रहे हो? 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और तो एक जीरो बचेगा। So basically, instead of adding, you have to, instead of dividing, you have to subtract the number of zeros, right? So let us say if you have x into 10 raised to the power a upon y into 10 raised to the power b, right? So x y से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 50 फैक्टोरियल में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, जो 10 फैक्टोरियल के नीचे के नंबर्स हैं वो उनके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि ये इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब क्या बचेगा आपके पास? 10 रेज़ टू द पावर a माइनस b। तो a माइनस b करना है, ना कि डिवाइड करना है। सो द आंसर विल बी 10। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप गलत करोगे तो ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी। तो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम्स, और आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, ताकि जो हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हमने क्लास में पूरे कवर किए हुए हैं, ठीक है, तो
सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। प्रैक्टिस शीट्स हैं, ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चंस तो हमारी प्रैक्टिस शीट में जो हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस शीट देते हैं, ठीक है, डाउट रिजोल्यूशन आपका हो जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि VARC में जो ग्रामर एंड वोकैब पोर्शन है वो भी कवर्ड है, सो दैट इट हेल्प्स यू इन मोमेंट्स ऑल्सो। एनमैट है, स्नैप है, जैट है, इन सब में ग्रामर वोकैब ये सब पूछी जाती है। और LR के टॉपिक्स भी कवर्ड हैं, सो दैट लेट्स से क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिलॉजिज्म्स, ये सारे कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशंस, ताकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिले। सो the cost is just 15,000, much less than other, plus the quality content. I hope you know our quality content, and section wise भी आप enroll कर सकते हो। So I hope you are loving this session, so don't forget to like this video and share it with your friends। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। Now let's try this question that if the number is divisible by 11, what is the least value that x minus y can assume? अब इसको अगर मैं क्वेश्चन का लेवल बोलूं तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डिविजिबिलिटी आई गेस आप में से सभी लोगों ने कवर की होगी। तो पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 11 क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट डिजिट्स लेके, वी हैव 4 9 2 5 x 8 6 y एंड 4। तो ये सम कितना आ गया आपका 10 एंड 18, 4 9 2 5 x 8 6 y 4। तो 10 प्लस 6 16, x प्लस 16 ये सम आ गया आपका, और ये आता है आपका 14 प्लस 8 22, सो y प्लस 22, राइट। तो जो लेट अस से दिस इज ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन बेसिकली ऑल्टरनेट होता है। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं ये ऑड है ये इवन है, जब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। तो देयर आर टू सम्स, लेट अस से p and q। So the divisibility of 11 says that the difference between them should be a multiple of 11, right? So it should be 11k, where k is 0 to 0 1 2 etc. तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहला लेते हैं 0 ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 0। so if you take x plus 16, right, is equal to, so minus y plus 22 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। हमें x माइनस वाई करना है, तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस टाइम, so it is 0, okay। so if you take 0, so what we will get, x minus y minus 6 equals to 0, ठीक है। तो x minus y minus 6 equal to 0, so x minus y हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 एक ऑप्शन है, बट नॉट नेसेसरली दैट विल बी द आंसर। अब देखो, अलग अलग केस बनाने से अच्छा है, देखो डिफरेंस कितने का आएगा, हर बार 11 का बढ़ेगा, चाहे हम 11 प्लस करें या माइनस करें, ठीक है। तो इससे माइनस करके देख सकते हो, यू विल गेट द आंसर -5, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा, अगर आप दूसरा केस बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। अब इसमें आपको केसेस ट्राई करने पड़ेंगे, ऐसे आपको यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 11, so we'll get x minus y is equal to 17, right? That is not possible, right? Not possible। अच्छा, k नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज सी वी आर टेकिंग द डिफरेंस। तो हम अभी तक क्या अज्यूम कर रहे थे, ये लार्जर है ये स्मॉलर वैल्यू है, हो सकता है कि ये स्मॉलर हो, ये लार्जर हो और ये स्मॉलर हो, ठीक है। ये हम अभी लार्जर माइनस स्मॉलर लेके चल रहे हैं, रिवर्स भी हो सकता है, राइट। सो वी में हैव, सो ये हमने देखा, अब इसका रिवर्स देखते हैं। तो वी टेक y प्लस 22, ये बड़ी वैल्यू है बिकॉज हम मॉड कह रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस कह रहे हैं, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो जरूरी नहीं है कि हमने x प्लस 16 माइनस वाई प्लस 22 किया और x प्लस 16 बढ़ा था, हो सकता है ये बढ़ा हो, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट, y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 11। ये इसको इधर ले चलो, विल बिकम x माइनस वाई, और 11 को इधर ले आओ, तो 6 माइनस 11 इज -5, वी गेट द आंसर इज -5। बट बेसिक आपका x माइनस वाई 6 आ गया था, तो प्लस माइनस 11 का डिफरेंस करके देखना है, क्योंकि 11 का डिफरेंस आता रहेगा। सो आप यहाँ से 11 सब्ट्रैक्ट करके मार्क कर सकते थे, इजी क्वेश्चन टू डू। The number of positive integers n in the range 2 to 50, ठीक है, such that n minus 1 factorial is not divisible by n is, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। I would rate that it's a moderate question।
अगर आपने नंबर्स का पैटर्न फिगर आउट कर लिया तो ये डुएबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बिटवीन 2 एंड 50, सो n इज इक्वल टू 3 to 49 हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, n लिखेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल लिखेंगे और बताएंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें काउंट करना है। तो n स्टार्ट करते हैं 3 4 5 6 7, कुछ कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। n माइनस वन फैक्टोरियल ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल विच इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 24, देन 120, 720 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे नहीं लिखने। 3 n माइनस वन फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय दिस, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 6 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 24 5 से डिविजिबल है, नहीं है। 120 6 से डिविजिबल है, 720 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अभी छोटे नंबर्स को छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो 8 फैक्टोरियल 8 है वो 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। चलो 7 फैक्टोरियल की अगर आपको वैल्यू पता है ग्रेट, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। 7 फैक्टोरियल में क्या क्या आ रहा है, 7 फैक्टोरियल में 8 से डिवाइड चेक करना है, राइट। 8 से डिवाइड चेक करना है, सो 7 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 7। 2 आ गया, 4 आ गया, 8 डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्या 9 8 फैक्टोरियल को डिवाइड कर पाएगा, देखो 8 फैक्टोरियल में 3 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 इंटू 3 9 बन गया, तो ये डिवाइड कर लेगा। क्या 10 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया लास्ट में, ठीक है, तो 10 डिवाइड कर रहा है। क्या 11 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, 11 के लिए हमारे पास नया प्राइम नंबर जनरेट हो रहा है विच इज 11। तो 11 अगर नया प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो पहले आया नहीं था, पहले आया नहीं ना प्राइम नंबर, सो ये डिवाइड नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो प्राइम नंबर्स हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस छोड़ के जो प्राइम नंबर्स हैं वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तक आए ही नहीं है, n माइनस वन फैक्टोरियल में वो होंगे ही नहीं। बट जो छोटे नंबर हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से द कॉम्पोजिट नंबर है, वो किसी से बने होंगे, ठीक है। लेट अस से अगर हम कहते हैं लेट्स से 22, क्या 22 21 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 22 कॉम्पोजिट नंबर है, 22 किससे बना है, 2 और 11 से, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 11 आ चुका है, तो 22 डिवाइड कर लेगा। बट अगर हम 23 फैक्टोरियल लेते हैं, 23 लेते हैं 22 फैक्टोरियल, सो 22 इज 23 इज प्राइम, ये अभी तक नहीं आया है तो इसलिए वो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये आपको सोचना था प्राइम नंबर। बट मैं इसे कहूंगा कि थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि आपको हर सिर्फ प्राइम नंबर नहीं देना, आपको ये भी देखना है कि 4 के केस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फोर इज दैट नंबर इन विच इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से सारे प्राइम नंबर ले लेंगे 3 से लेके 50 तक के, राइट। अच्छा, एक चीज है, एक काउंट का मेथड बताता हूँ कि 2 to 50 लाइक विद इन 50 वी हैव 15 प्राइम नंबर्स। चीजें फैक्ट पता होते तो मतलब बेनिफिट रहता है, लाइक 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 100 तक 25 होते हैं। ये फैक्ट कभी कभी हैंडी हो जाते हैं, खासकर इन तरह के क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ प्राइम्स। अगर नहीं पता तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है 1 to 50 15 है, 2 यहाँ पे था ही नहीं है। अब यहाँ पे 14 प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, और एक 4 हमारा एक्सेप्शन है, स्मॉल नंबर है, तो हमारा आंसर एक्चुअली 15 ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस्मत आपकी अच्छी होती है, आपका 15 आंसर ऐसे आ जाता है, आप 2 to 50 प्राइम नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 to 50 आपको पता है कि 15 प्राइम नंबर है, 4 का एक्सेप्शन नहीं लिया, तो आपका आंसर आ जाता है। समटाइम्स यू आर लकी ऑल्सो, ओके। सो 4 इज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज देर आर 14 प्राइम नंबर्स, ठीक है। कैलकुलेट मतलब फैक्ट पता है ग्रेट, नहीं पता तो काउंट कर लेते हैं। 3 से स्टार्ट करना है बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम 3, तो 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 and 47, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 प्राइम्स हो गए, एक 4 हमारा एक्सेप्शनल वैल्यू थी, तो टोटल 15 सच नंबर्स, ठीक है। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था।
तो आई होप ये क्लास में आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, ठीक है, वैरायटी मिल रही है। तो ऐसी सीरीज चलेगी 30 डेज तक की, जिसमें अलग अलग वैरायटी मिलेगी, काफी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल फॉर्मूला होता है, तो आपको लगेगा हाँ यार कि कुछ तो इसमें सोच विचार करना पड़ रहा है, सीधे फॉर्मूला नहीं लग रहा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑफन मॉक्स में मिल जाते हैं, या फिर अ, इस तरह के आपको क्वेश्चंस थोड़ा सोचने में आपको समय लगता है, राइट। सो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड गुड क्वेश्चंस, नॉट द स्टैंडर्ड बोरिंग क्वेश्चंस। तो प्लीज डू वॉच दिस सीरीज फॉर 30 डेज। आई कैन बेट कि 30 डेज आपने वॉच सीरीज देख ली तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, प्लस अप्रोच पता चलेंगी कैसे थॉट प्रोसेस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इजी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट देन तो डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ 20 दैट कैन डिवाइड 1000 फैक्टोरियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 20 का। 20 इज 4 इंटू 5, और वी कैन से 2 स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो पावर्स देखेंगे, एक पावर्स ऑफ 5 देखेंगे, एक पावर्स ऑफ 2 देखेंगे, ठीक है। पावर ऑफ 5 तो इजी है, पावर ऑफ 5 कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड करते रहो, 200 डिवाइडेड बाय 540, बाय 5 इज 8, 8 बाय 5 इज 1। तो ये ऐड कर लो, तो कितना हो गया 249, ठीक है, 249 हो गई। अब पावर ऑफ 2 कैसे करेंगे, तो पावर ऑफ 2 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते चलेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 2, राइट। फिर वही जो सीक्वेंस हमने बनाया था वो करते चलेंगे। 2 से बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, करके देखते हैं। 500, मैं सीधे अपॉन 2 नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर लिखते जा रहा हूँ। 125, फिर उसके बाद आएगा 62, फिर आएगा 31, फिर आएगा 15, फिर आएगा 7, फिर आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे नंबर्स थे, ऐड करने में टाइम लगेगा। ओके, सो यू विल हैव टू ऐड दीज नंबर्स, ठीक है। कितना हो गया, 500, 750, 750 प्लस 125 इज 875, 875 plus 15 is 890, this is 900, 900 plus 30 63, 993, 994। तो पावर ऑफ 2 आ रही है 2 की पावर 994, ठीक है। बट ये नंबर क्या है, ये नंबर है आपका 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर की कितनी पावर होगी, 2 स्क्वायर की पावर आएगी 497, एंड वी चूज द लोअर पावर, ठीक है। तो ये आपने नोटिस किया होगा, जब हम नंबर ऑफ जीरोस भी निकालते हैं तो वी ऑलवेज चूज द लोअर पावर। सो आपको क्या करना है, इसमें से लोअर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, ओके। यू हैव टू एक्सेप्ट द लोअर वैल्यू आउट ऑफ दिस विच इज 249। तो आंसर आपका आ जाएगा 249। सपोज अगर मैं इसे 20 की जगह 80 कर दूं, ठीक है, अगर मैं 20 की जगह 80 कर देता हूं तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाएगा, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 80 कर दूं तो 80 मतलब क्या है, 80 का मतलब है 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर मुझे 4 से देखनी है। तो अगर मैं इसे 2 की पावर 99, पहले 2 की पावर निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर है उसकी पावर निकालनी पड़ेगी। अब मुझे निकालना है कितना हो सकता है, तो 994 इफ यू डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 24, 96, 3, 34, 8, 248 बनेगी। 2 की पावर 4, 248 इंटू 2 स्क्वायर आ रहा है, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, 248 बन रही है। तो पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 इज 248, और 2 रेज टू द पावर 5 आपकी बन रही है 249। सो वी विल चूज द लोअर नंबर दैट इज 248। अगर इसे और बड़ा कर देता हूँ, लेट अस से 160 कर देता हूँ, 2 की पावर 160 पूछ ली, सॉरी 160 नंबर पूछ लिया, highest power of 160 in this question itself, right? So that will become 2 to the power 5 into 5, right? So 2 की फिफ्थ पावर कितनी हो जाएगी, 994 को आप 5 से डिवाइड कर लो, that will be equal to 19 is 95 and 198। तो इसमें क्या होगा,
2 की पावर जो 5 है उसकी पावर बनेगी 198 और 5 की पावर तो बन रही 249, सो वी विल चूज द लोअर पावर दैट इज 198। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है, वी चूज द लोअर पावर्स ऑफ द 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे किए जाते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student writes, now this question is again an easy one, previous वाला I think हमने easy ही बात की थी, easy to moderate depending on कि आपको concept आता है कि ये बहुत easy question, अगर आपको concept नहीं आता आप फिर भी तुक्के से कर सकते हो। ठीक है, तो easy question आ गया, थोड़ा आप heavy question से थक गए होगे तो ये question आपको easy लगेगा। A student writes 2-digit number reverses its digits and adds it to the original number. He gets a result as x. Which of the following cannot be the sum of digits of x? जिसको कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए तो बहुत इजी है, जिसको नहीं भी आता वो भी कह सकता है कि मॉडरेट था, तुक्के से हो गया, हिट एंड ट्रायल से हो गया। बट हिट एंड ट्रायल मिनिमाइज करना है। ठीक है, कैसे करना है? 2 डिजिट नंबर क्या होता है? अगर आप 2 डिजिट नंबर दो तो वो होता है 10a+b। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू राइट द डिजिट्स a एंड b इट इज एसेंशियली 10a+b। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डिजिट्स रिवर्स करने। सो डिजिट्स रिवर्स करके क्या नंबर बनेगा? इफ यू रिवर्स द डिजिट्स इट बिकम्स 10b+a, रिवर्स डिजिट्स में है। अब इन्हें क्या करना है? ऐड करना है। तो व्हेन वी ऐड वी गेट 11a+11b। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आपने नंबर सिस्टम टच किया तो ये चीज आपको पता ही होगी कि व्हेन यू टेक द सम इट इज 11 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो नंबर है जो x है, x इज 11 का मल्टीपल, 11 टाइम्स ऑफ a+b। अब आप x की वैल्यूज लिख सकते हो। 11 कुड बी 11, राइट? 11 नहीं होगी क्योंकि डिजिट्स मिनिमम 1 1 लोगे। 22, 33, 44, 55 ऐसे लोगे। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, 9 तो आ ही नहीं रहा, इवन आएगा आपका सम ऑफ डिजिट्स। अब आप सोचोगे कि क्या ये 100 के बियॉन्ड का नंबर लेके तो क्या होता है? आप 88 लोगे, फिर 99 लोगे। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ तक तो इवन आ रहा है, क्या आगे भी आएगा? 110 लोगे तो 2 आएगा, 121 लोगे तो 4 आएगा, 132 लोगे तो 6 आएगा। वी विल ऑलवेज गेट एन इवन सम, ऑड सम नहीं आ सकता। सो वी कैन से दैट 9 इज नॉट अ पॉसिबल नंबर। ठीक है, इजी था ये, काफी इजी, और इसे इजीली आपने कर भी लिया होगा। ओके, रिमाइंडर का क्वेश्चन है, द नंबर 37 रेज टू द पावर 75 प्लस 47 रेज टू द पावर 75 इज नॉट डिविजिबल बाय विच ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी का रूल है, अब डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आपने ये रूल्स पढ़े हैं तो ये सुपर इजी क्वेश्चन है। इसे मैं इजी और एक्सट्रीम एंड पे डिफिकल्ट कह सकता हूँ। ठीक है, डिफिकल्ट इसको जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट जिसको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लाइक इफ यू हैव एन नंबर a एंड अ नंबर b both raised to the power n, right, and n is odd, that means this number is divisible by, right, a+b। ये हमारा रूल कहता है कि अगर पावर ऑड है तो जो बेस है उनका जो सम है उससे वो नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, इतना सिंपल सा रूल है। अगर आपने रूल नहीं पढ़ा है तो आपके लिए चैलेंज हो सकता है, अगर रूल पढ़ा है डेफिनेटली ये काफी इजी क्वेश्चन रहा होगा। सो वी हैव द सम एज 84, तो 84 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 37 प्लस 47 84। सो 84 से डिविजिबल है तो 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 5 से नहीं। So it was a very easy question. So that is why आपको कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी चाहिए। कभी मान लो कैट ने एक क्वेश्चन सोचा नंबर सिस्टम से, लास्ट ईयर नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस आए थे रिमाइंडर्स वगैरह, तो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, फिर कुछ इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये पढ़ लिया होता तो इजीली हो जाता। सो जस्ट इंश्योर दैट कि यू रीड ऑल सच प्रॉपर्टीज, कोई भी टॉपिक इग्नोर मत करके जाया करो। कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैट में आ जाते हैं और आप उन्हें इजीली कर सकते हो। ओके, well, here's the next question again on the properties of numbers. It says a number 1
plus 11 to the power 39 is divisible by x. So the following numbers is also divisible by x. Okay. Again, property based question. अगर property आती है तो you can say it is easy to moderate. Otherwise नहीं आती तो you will not be able to find 11 to the power 39. So there are a lot of questions, especially in number system, which are direct property based. आपको properties पता होनी चाहिए. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है. Let us say it is y. So let us say 1 plus y is divisible by x, right? Now understand that if we have 1 plus y divisible by x, 1 plus y की power odd will be divisible by x. ओके, तो एक नंबर लेके देखते हैं. ठीक है, टेस्ट करते हैं, सही आएगा तो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली. ठीक है, तो अगर हम मान लो कुछ लेते हैं, लेट अस से हमने लिया 1 प्लस 7. ठीक है, 1 प्लस 7 लिया. 1 प्लस 7 हमने क्या किया, किससे डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 4. ठीक है, 1 प्लस 7 डिविजिबल बाय 4 होता है, 8 डिविजिबल बाय 4 होता है. अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 7 स्क्वायर लूँ तो कितना हो गया, 50 हो गया. 4 से डिविजिबल है, नहीं है. बट अगर मैं 1 प्लस 7 क्यूब लूँ, क्योंकि 7 क्यूब हमें पता है, राइट, दैट इज 343. सो ऐड करके 344 बना. ठीक, 344 4 से डिविजिबल है, यस 4 से डिविजिबल है. तो एक टेस्ट भी कर लिया हमने छोटे नंबर से. ठीक है, बड़े नंबर से तो डिफिकल्ट होगा, बट एक छोटे नंबर से टेस्ट हो गया दैट इट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, तो जब ऑड पावर होती है तो डिविजिबल होता है. तो ये मतलब मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट इफ यू नो द प्रॉपर्टी, और इट कैन बी क्लासिफाइड डिफिकल्ट इफ यू डू नॉट नो द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी पता होना इज अ ब्लेसिंग. स्पेशली प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, प्रॉपर्टी पता थी तो बहुत इजी था. ये फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऑड पावर है कि इवन पावर है. ये चीजें देखनी पड़ती हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन नंबर सिस्टम व्हिच आर प्रॉपर्टी बेस्ड. तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो पूरा कवर करके जाओ, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गए विच मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. और नहीं आता है तो ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड पावर दिख रही है, ऑड नंबर की ऑड पावर ले ली, 7 की पावर 1 ले ली. ठीक है, और फिर ट्राई करके देख लिया. तो कुछ ऑड इवन का खेल होगा, ये समझना नंबर सिस्टम है तो ऑड इवन का खेल हो सकता है. ऑड इवन कुछ छोटे नंबर्स पे ट्राई कर लो, प्रॉपर्टी नहीं भी आती वहां पे आप बना सकते हो प्रॉपर्टी खुद से. प्रॉपर्टी बन गई तो अच्छी बात है, यू विल गेट इट राइट. ओके, ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says if n is the largest multiple of 55, that can be found by using all the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 just once. ठीक है, सारे digit use करने, just once करने हैं. Find the sum of the last 3 digits of n. So divisibility का खेल है. I would rate it as a moderate to difficult question because 55 पहले आपको divisibility कम लोगों को पता होगी, पता भी होगी तो थोड़ा लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाना है थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा. क्योंकि अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ लें तो आप ऑप्शन देके कर लोगे, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स पूछा है तो आपको कॉम्बिनेशंस सोचने पड़ेंगे, राइट. तो अगर हम कह रहे हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 55, 55 मींस इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 एंड 5. ठीक है, 11 एंड 5 से डिविजिबल करना है. 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने देखा भी था, ऑल्टरनेट डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट होता है. और 5 का तो हमें पता है लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल थिंग फॉर 5, बट 11 वाले के लिए हमें देखना पड़ेगा. So we have how many digits? We have total of 7 digits. 1 2 3 4 5 6 7. तो ऐसे लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट डिजिट समझ में आ जाएंगे. ठीक है, अब क्या करना है कि इनका जो सम है, लेट अस से दिस सम इज p and this sum is q. So p minus q should be a multiple of 11, right? So it could be 0, 11, 22 and so on. ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, पहले हमें सारे, अब हमें कैसे निकालेंगे p माइनस क्यू की क्या वैल्यूज आनी चाहिए. ठीक है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, कैसे सोचेंगे. तो ये इसमें चैलेंजिंग चीज है कि आपको सोचना पड़ेगा p माइनस क्यू की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, राइट. तो अगर हम बात करें कि इसकी क्या वैल्यूज आ सकती हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि
वी हैव पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पी प्लस क्यू निकाल लो। तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? वी हैव 1 2 3 4 5 6, टोटल इज 21। ठीक है, तो पी प्लस क्यू 21 है। अभी ये फॉरगेट कर लो कि क्यू बड़ा है कि पी बड़ा है। ठीक है, ये भूल जाओ। जस्ट जस्ट अज्यूम कि पी बड़ा है। ठीक है, पी माइनस क्यू कैन इट बी जीरो? इससे क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा आपका 21, p आपका नॉन इंटीजर वैल्यू होगा, तो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है, तो इट विल बी 21 एंड 11, दैट मीन्स p आ जाएगा आपका 16 और q आ जाएगा आपका 5। तो ये बन सकता है, यही बन सकता है। अगर आप बड़ा ले लोगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। p प्लस क्यू तो 11 के बाद 22 पहुंच जाएगा, राइट? तो वी हैव p एज 16, q एज 5, मीन्स ये चार जो डिजिट है उनका सम 16 आना चाहिए और बाकी तीन का 5 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने p को क्यों बढ़ा लिया है, q को क्यों बढ़ा लिया है, ये भी समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 16 बनाओगे, ठीक है, देखो आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो आपको 6 इस वाले पोजीशन पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 6 आ गया तो वो आपका सम वैसे ही 5 नहीं बनने वाला। ठीक है, मतलब आपका देखो 16 और 5 बनाना ना, यू हैव टू मेक 16 एंड 5, p एंड q कैन बी इंटरचेंज्ड। ये नंबर नहीं होता, नॉर्मल नंबर होता कोई जिसमें लार्जेस्ट नहीं होता, तो p एंड q कुड बी इंटरचेंज्ड। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अगर आप 6 यहाँ डाल दोगे तो ये सम अपने आप ही 5 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिकली समझ सकते हो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं जहां पे आपको दोनों वेज में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉजिकली करना है, किसी चीज को रटना नहीं है कि हाँ यार यहाँ पे लिया था तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। कई लोग ऐसे कॉन्सेप्ट भी लेके चलते हैं, कई लोग ऐसा पढ़ाते भी इनफैक्ट, वो बच्चों से कहते हैं कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और फिर बच्चे सिर्फ वो चीज फोकस करके जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप मिस्टेक करोगे तो फिर आप सही क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअली क्यों बड़ा होगा वी डिस्कस्ड। तो नाउ दिस इज 16, तो हमें क्या करना है, 16 बनाना है, यहाँ पे 6 रखना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे 0 या 5 रखना है, ये सोचना है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, राइट, सपोज आई पुट 0 ओवर हियर, देन व्हाट विल हैपन? 0 यहाँ रखूंगा तो मीन्स यहाँ पे मुझे टोटल 5 बनाना है। ठीक है, सॉरी, लाइक पहले ये देखते हैं कि 16 कैसे बन सकता है एंड 5 कैसे बन सकता है, राइट? यहाँ पे 0 या 5 हो सकता है। मुझे ये 5 बनाना है 3 नंबर से। ठीक है, 3 नंबर सेलेक्ट करने। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर से 5 बनाता हूँ तो मैं छोटे छोटे नंबर लूंगा। ठीक है, छोटे नंबर लूंगा। अगर मैं छोटे नंबर 3 लेता हूँ तो व्हाट 3 नंबर्स शुड आई टेक? कैन आई टेक 0? राइट, 0 1 एंड 4 अगर मैं एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ 0 1 4, तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज सोचते हैं कि अगर मुझे लार्जेस्ट, सी देयर इज नो कांस्टेंट। ठीक है, अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर लेना है इन सारे डिजिट से तो आप क्या करोगे? 6543210 लिख लोगे। ठीक है, 6543210 लिख लोगे। वाई विल यू राइट दैट? क्योंकि ये ऑर्डर डिसेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे सोच, मतलब ये मैं इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसीलिए कहा है क्योंकि आपको इसमें बहुत सोचना पड़ेगा कि डिजिट्स कैसे लेना है। 16 5 बन गया, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे लेना है डिजिट्स का। ठीक है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने पड़ेंगे तो ही बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्मल नंबर बोलूं, कोई कांस्टेंट नहीं दूं, कहूंगी 0 1 2 3 4 5 6 से आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, आप कहोगे कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आता है। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या मैं 5 ले सकता हूँ? अगर मुझे बड़ा से बड़ा नंबर बनाना है, कैन आई टेक 5 हेयर? इफ आई टेक 5 हेयर, ये क्यू का सम होना चाहिए 5। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम 1 और 0 भी ले लेता हूँ तो ये सम 6 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं 5 इस क्यू वाले सेक्शन में नहीं ले सकता हूँ, आई कैन नॉट टेक 5 हेयर। अब मैं 5 नहीं ले सकता तो मुझे अभी भी बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, क्या मैं 5 से बड़ा नंबर ले सकता, 5 से छोटा क्या ले सकता हूँ? क्या मैं 4 ले सकता हूँ? कैन आई टेक 4? यस, आई कैन टेक 4। कैसे 4 ले सकते हैं? यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 1 0 ले लेता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स लगा दिए। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं 6 4 1 0 यूज हो चुके हैं, अब हमारे पास बचते हैं 2 3 और 5। तो वी हैव टू अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 और क्या क्या बचे हैं?
5 देखो, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, 5 0 हमने यहाँ यूज कर लिया, यहाँ पे आपको 5 यूज करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 है। तो 6 एंड 5 भी यूज हो चुके हैं, 2 और 3 बचते हैं, सो यू विल गेट 3 एंड, ठीक है। तो 5 भी आप वहां पे यूज नहीं कर सकते थर्ड डिजिट में। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 6431 205, ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट कितना 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 55 यूजिंग दीज डिजिट्स, ये हमारा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो व्हाट दिस, ये आपका नंबर बनेगा। समझ में आया? इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा था, आई वुड रेट इट कि थोड़ा सा डिफिकल्टी साइड पे है, क्योंकि आपको काफी इसमें सोच विचार करना है लार्जेस्ट किस तरह से बनाओगे। तो ये लार्जेस्ट बनेगा। पहला स्टेप हमने क्या किया, पहले हमने निकाला सम, बिकॉज हमें 55 से डिविजिबिलिटी चाहिए, दैट इज 11 एंड 5। 5 से इजी थी, 0 या 5 पुट कर लेंगे, बट 11 से हमें निकालने के लिए सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ेगा। लार्जेस्ट नंबर तो डेफिनेटली 6 से स्टार्ट होगा, 6 यहाँ चला गया, ठीक है। अब हमें यहाँ का सेकेंड डिजिट लार्जेस्ट देखना है, 5 हम रख नहीं सकते तो 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 रख लिया तो 4 हम तभी बना पाएंगे जब हम 410 करेंगे, ठीक है। 410 बना लिया। अब हमें लास्ट डिजिट 5 ही रखना है क्योंकि वी हैव नो अदर ऑप्शन। 0 आपका सेकंड लाइन में यूज हो गया, मतलब ऑल्टरनेट डिजिट्स में 0 यूज हो चुका है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। अगर आप देखोगे 9 11 16 एंड दिस इज 5, इट विल बी डिविजिबल बाय 11। सो आप कैलकुलेटर यूज करके 55 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, आप देख लोगे डिविजिबल होता है। अच्छा, तो ये क्या पूछ रहा है, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स, तो लास्ट 3 डिजिट्स आर 205, द सम इज 7, का सम आ जाएगा 7। Okay, so this was the class. I hope you loved solving questions. Okay, तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके भी एमबीए करो करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यू कैन गेट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन द क्लासेस। तो प्लीज डू अटेंड दीज वीडियोस। 30 डेज में आप काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखोगे और मेथड्स देखोगी कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। तो दैट्स फॉर दिस सेशन, एंड इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अदर एग्जाम्स एंड लुकिंग फॉर मॉक टेस्ट, यू कैन चेक अवर मॉक टेस्ट। हमारे ओमेट्स के भी मॉक्स हैं सारे एग्जाम्स के। अभी जिन कुछ कुछ एग्जाम्स के हमने मॉक्स लॉन्च कर दिए, जैसे कैट एंड मैट स्नैप, इनके मॉक्स चल ही रहे हैं। जिन एग्जाम्स में जीके आती है, लेट अस से जैट का हम थोड़ी देर बाद लॉन्च करेंगे, जब थोड़ा क्योंकि जीके अपडेट करनी पड़ती है, तो वी विल स्टार्ट दोज मॉक्स आल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद सीमैट एमएचसीडी, जब जब एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे उससे पहले हमारे ये मॉक्स लॉन्च हो जाएंगे। So that's for this class. I hope you enjoyed watching this class. So don't forget to like this video and subscribe to our channel if you are new to the channel.